special if you just put a lots of claps into it. So जोरदार तालियां हो जाए for this very special moment of lamp lighting ceremony. Put some energy inside the house. के लिए हमारे लेट अजीत दादा पवार जी के लिए मौन धारण करेंगे. Thank you so much everyone for paying your respects. You all can take your seats now. So now proceeding ahead, once again I wish a very warm welcome to one and all present here on behalf of Pradai B&M Raigarh to the official press conference for 9 property exhibition. This is the day, as I said. Next, proceeding ahead, Mr. Rasik Chauhan ji, member of Advisory Board of Pradai B&M Raigarh. See, I know refreshments have been served, so put some energy inside the house. जितनी भी एनर्जी आपके पास है, तालियों में वो एनर्जी दिखनी चाहिए, जोरदार तालियां हो जाए. Continuing, Mr. Ashwin Patel ji, immediate past president of Pradai B&M Raigarh. I request all the dignitaries kindly take their seats on the dais. Mr. Vignesh Patel ji, Vice President of Pradai B&M Raigarh. A big round of applause, ladies and gentlemen. Mr. Bhadresh Shah ji. I request Mr. Bhadresh Shah ji kindly take your seat on the dais. Next, Mr. Mansukh Patel ji. Mr. Harnish Karia ji. Mr. Pulin Parekh ji. Mr. Pankaj Dholu ji. See, ladies and gentlemen, this is not fair that just my voice is audible inside the house. मेरी आवाज के साथ आप सभी की तालियों की आवाज भी आनी चाहिए. And request the media team, थोड़ा सपोर्ट आप सभी का भी चाहिए. जोरदार तालियां आपकी तरफ से भी बजनी चाहिए. Next, Mr. Rushish Timbadia ji, Mr. Vasant Bhadra ji, Mr. Himanshu Patel ji, Mr. Pankaj Patel ji, Mr. Chirag Shah ji. I request all the dignitaries kindly take their seats on the dais. Mr. Chirag Shah ji, Mr. Mansukh Timbadia ji. Now, I would like to request our sponsors to kindly come forward and take their seats on the dais. Mr. Devang Patel ji from Shriji. Mr. Amit Shah ji. Mr. Vicky Thomas ji from EV Homes. Mr. Avinash Jagdale ji from J Prime. ये मोमेंट जहां तक मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा स्पेशल है because all our dignitaries are seated on the dais. You all can see, and just to make this moment very special, क्या चाहिए आप सभी की ओर से जोरदार तालियां एक बार हमारी सभी dignitaries के लिए of Pradai B&M Raigarh. Now to proceed with the day, I would like to request the President of Pradai B&M Raigarh, Mr. Jeetu Jagwani ji, to kindly address the gathering, and we will welcome him on the podium with lots of तालियां, जोरदार तालियों के साथ. Let's welcome Mr. Jeetu Jagwani ji. Good evening, everyone.
आवाज़ बराबर है ना? यस। गुड इवनिंग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल अगेन, क्योंकि एक बार आपका स्वागत हो चुका है, लेकिन सेकंड में भी आपकी तरफ से स्वागत करना चाहूँगा, हमारे डिग्नेटरीज का, हमारा मीडिया का। 9th केरला BNM रायगढ़ एक्सपो जो 6, 7, 8 तारीख को, 9 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी एक्सपो एक विटनेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर है। पहले हम सोचते थे कि रायगढ़ एक डेवलप्ड अनडेवलप्ड समझ लीजिए एक रीजन है जो आहिस्ता आहिस्ता अभी डेवलप्ड हो गया है। जो हम फ्यूचर की बात करते थे, अभी वो सब यहाँ फ्यूचर आ चुका है। एयरपोर्ट पहले नहीं था, ऑलरेडी एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अथल सेतु जो साउथ से कनेक्टेड, बॉम्बे साउथ से कनेक्टेड है, वो भी आप देखते हैं कि हम कितना नज़दीक पहुँच चुके हैं। न्यू बॉम्बे इज इक्वल टू बॉम्बे। आज कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा आगे रायगढ़, न्यू बॉम्बे सब चल रहा है। मार्केट बहुत यहाँ पर डेवलप्ड है। और ये एक्सपो जो रहता है, ये एक्सपो सिर्फ नॉट ओनली सेल होम्स, घर सेल करने के लिए नहीं रहता है। हमारे जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारे बिल्डर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका काम, क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, क्या वास्ट तरीके से काम हो रहा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उसके ऊपर ये सब चलता है। इस बार इसलिए हमने अपनी टैगलाइन ही ऐसी रखी है, अपना टाइम आ गया। जो हम पहले सोचते थे कि आएगा, लेकिन अभी ये टाइम आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि पहले हम न्यू बॉम्बे को एक अफोर्डेबल हाउसिंग करके समझते थे। अभी आई डोंट थिंक सो कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग रहा है। डे बाय डे वास्ट होता जा रहा है। पनवेल की तरफ से जितने भी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ सब आपको अफोर्डेबल मिलेंगे, लेकिन सिडको एरिया जो कंप्लीट डेवलप्ड हो चुका है। जितना मुझे याद है, पहले यहाँ पर मेरे एरिया में खामोटा में जहाँ पर एग्जीबिशन होने जा रहा है, वहाँ पर 1 और 2 BHK ही डेवलप्ड होते थे। लेकिन अभी हम ही खुद 4 BHK फ्लैट्स बना रहे हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है। इट मीन्स इट्स अ टोटली डेवलप्ड एरिया। मैं जिसको कहना चाहूँगा, अफोर्डेबल अभी वर्ड हमने कम करना चालू कर दिया। यहाँ पर हमारे एक्सपो में 50 से ज़्यादा बिल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम 200 से 300 प्रॉपर्टीज शोकेस कर रहे हैं। इसका फ़ायदा सब कस्टमर्स को ये होता है कि वो एक देख सकते हैं कि भाई कौन से एरिया में कौन सा बिल्डर काम कर रहा है। और ये एक्सपो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें शोकेस ही करना है। इससे हमारी बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी समझ में आती है, उनको उनका वेट समझ में आता है, उनका काम करने का तरीका समझ में आता है, तभी जाके वो हमारे पास बुकिंग करते हैं। नहीं तो आजकल ऐसा ही है कि भाई लोग एक ब्रोशर एक बिल्डर के पास अप्रोच करते हैं, लेकिन एक्सपो में आने के बाद आपको वास्ट सब देखने को मिलता है। इस बार हमने ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को किया है। और ज़्यादा तो एक्सपो के बारे में मेरे कन्वीनर मिस्टर हरीश कहानियाँ ही बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे एक्सपो में जितने लोगों का फ़ायदा हो वो उसे उठा सकें। लास्ट टाइम भी हमने 500 के आसपास फ्लैट सोल्ड किए थे। इस बार टारगेट कुछ ज़्यादा ही है। और देयर इज़ नो लिमिट, द स्काई इज़ अ नो लिमिट। हमारी कोई लिमिट नहीं कि हम कितना काम कर सकते हैं। मैं अपने बिल्डर्स लोगों के लिए कहूँगा जो मेरे साथ लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, कि खुशबू बन के गुलों से उड़ा करते हैं, हवाएं बन के पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये मुश्किलें हमें क्या रोकेंगी, हम बिल्डर लोग हैं,
परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो हमारा हौसला तब आता है जब हमारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स विजिट करते हैं, उनको सेटिस्फिकेशन मिलता है, तभी ये एक्सपो हर साल, जो मैं देख रहा हूँ लास्ट दिस इज 9th एक्सपो, हर साल हम बेटर से बेटर करने जा रहे हैं। उसमें मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें जो एक्सपोजर देते हैं, जो हमें मीडिया कवरेज करते हैं, उसमें काफ़ी हाथ हमारे पब्लिसिटी का इनका रहता है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका साथ रहेगा, उसे चलता जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर की बात अगर सच लगी और जिन जिनको ये लगता है कि हर साल की तरह हमारा इस साल का एक्सपो भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल और धमाकेदार होगा, उन्हें अब जोरदार तालियां बजानी है जीतू सर के स्पीच के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इनवाइट अ लीडर who has played a key role in bringing this initiative together. That is none other than the convener of Pradai B&M Raigad, Mr. Harnish Karia ji. एक बार जोरदार हमारे कन्वेनर के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। Namaste and a very warm welcome to all our friends from the media and our builders. सबसे पहले मैं मेरे मीडिया के भाई बहनों को स्वागत करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और आप ही लोग हो जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा सकते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकता हूँ कि हमारा एग्जीबिशन 9th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन बाय क्रेडाई B&M रायगढ़ विच इज़ हैपनिंग ऑन 6th to 9th of February in Kamote, opposite Khandeshwar station. We recently got a confirmation from our Shri Girish Mahajan ji that he'll be inaugurating the event. He's the Minister of Water and Water Reserve and Disaster Management. दोस्तों, हम हमेशा कहते थे कि अपना टाइम आएगा, बट आज हम आ गए हैं इस मंच पे कहने के लिए कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। और नवी मुंबई और रायगढ़ इस बार पूरी लाइमलाइट में है। इट हैज़ बिकम अ सैटेलाइट सिटी इन विच आर कनेक्टिविटी इज ऑन द टॉप। While the Atal Setu and the water taxis have got Navi Mumbai and Mumbai very connected, our dream, the Navi Mumbai International Airport, which was inaugurated by our Honorable Prime Minister recently, now has brought Navi Mumbai on the global radar. But we are not stopping here. The future belongs to Raigad and Navi Mumbai. The proposed Gold Line Metro, which connects Mumbai Airport and the Navi Mumbai Airport, will cut down the time to 30 minutes, which is just proposed recently. The coastal road expansion will soon link Ulve to the Navi Mumbai Airport directly via the Atal Setu. The coastal road expansion, the Panvel Karjat Link Road, the Virar Alibag Corridor Road, the multimodal corridor road, and the Navi Mumbai Metro, the Kharghar Turbe Tunnel are the few infra projects which are in the pipeline. Our CM has recently in Davos declared that the International Corporate Park, the BKC2, which will be coming in the Mumbai 3.0, which is going to land a lot of global opportunities. A lot of global companies have already committed to invest. Because the demand for Navi Mumbai and Raigad has exploded, this year our exhibition is bigger than ever. It is almost double the size of the previous years. We have more than 70 plus developers, 300 plus properties, and we are expecting a footfall of 50,000 plus people over the 4 days. We have a 360-degree media campaign for which our brand ambassador is Shilpa Shetty ji. And we've covered major medias, the digital media, our hoardings, our bus, railway, and also the media, newspaper media which we have. Our homes which will be presented in this exhibition are going to be from 12 crores to 12 lakhs to 5 crores, and everything under one roof. कस्टमर के लिए काफ़ी स्पेशल ऑफर्स रहेंगे जो बिल्डर प्रमोट करेंगे, जैसे कि नो स्टैम्प ड्यूटी, GST और whatever offers the builder is giving. But as an association, we have also kept a lucky draw in which random winners will get a car, LED TVs and iPhones.
This massive scale has only been possible because of our sponsors which are here. Our title sponsors Shriji Ventures, our main sponsors EV Homes and J Prime Buildcon, our co-sponsors Delta Group, Today Group, DDSR and Bhagwati Group. I would want to extend my deepest thanks to our seniors for having faith in our young team and giving this responsibility to us. A big salute to our co-conveners Pulin and Rushish who've been working hard with me. We thank the entire managing committee and the trust board who've given us guidance and support. मैं सारे मीडिया और घर वालों को आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज़ आइए और आपके सपनों का घर नवी मुंबई में खरीदिए. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, Harni sir, for your kind words. Before proceeding ahead with the day, I would like to request Mr. Devang ji to kindly join us on the dais. Mr. Devang ji. And once again, जोरदार तालियों के साथ let's welcome Mr. Devang ji on the dais. Now proceeding ahead, it's time to hear from another visionary leader who continues to strengthen and guide our organization, which is none other than Mr. Rasik Chauhan ji, President of CREDAI BNM Navi Mumbai. एक बार जोरदार तालियों के साथ let's welcome him on the dais. Good evening all. 9th Mega Property Expo organized by CREDAI BNM रायगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सर्व डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट जीतू भाई एंड ऑल मैनेजिंग कमेटी ऑफ CREDAI BNM रायगढ़, हमारे CREDAI BNM के पास्ट प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी श्री देवांग जी, माय पास्ट प्रेसिडेंट वसंत भद्रा और उपस्थित सर्व मेंबर्स, मैं सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. ये प्रॉपर्टी एक्सपो 2 महीना पहले ही हम लोग CREDAI BNM की ओर से वासी में ऑर्गेनाइज किया था और उसमें आप सभी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और उसकी वजह से वो ग्रैंड सक्सेस रहा. अभी ये प्रॉपर्टी एक्सपो का टाइम चल रहा है. जैसा अभी हम लोग CREDAI महाराष्ट्र में भी देखते तो बहुत सारी सिटी में अभी एक्सपो चल रहा है, जा रहा है और उसमें जो फीडबैक आ रहा है अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, मिल रहा है लोगों को. तो उसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा टाइम चल रहा है और इस टाइम में CREDAI BNM रायगढ़ ने प्रॉपर्टी एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है. तो मैं पूरी रायगढ़ की टीम को ऑल द बेस्ट बोलूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि उन्होंने ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपो करने जा रहे हैं और उसमें उनको काफ़ी अच्छे तादाद में बिल्डर मिले हैं, पार्टिसिपेंट मिले हैं और सभी पार्टिसिपेंट को भी मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा सक्सेस मिले और ये एक्सपो काफ़ी सक्सेस रहे. अभी हम लोग को जैसा CREDAI BNM ने जो ऑर्गेनाइज किया था एक्सपो, उसमें काफ़ी अच्छा बुकिंग्स ऑन द स्पॉट बुकिंग हुआ था और वही मार्केट में वो उस टाइम पे भी जैसा बताया था कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑन गोइंग है, इसीलिए ये मार्केट मूवमेंट में है नई मुंबई का. इस बीच में अभी लास्ट वीक में या 15 दिन पहले ही जो दावोस में अभी बताया हर्निस ने कि दावोस में जो अभी अपना CM ने कुछ MOU साइंस किए हैं और एक नया मुंबई 3 का जो ऐलान किया है वो हमारे पास में ही आ रहा है, नई मुंबई के पास में. वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है और उससे नई मुंबई को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है. तो ये बात जब बताई गई तो नई मुंबई के लिए और एक अपना क्या बोलते हैं कि मार्केट में बूस्ट होने का एक फैक्टर्स मिला है. तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ये बात आप लोगों तक पहुंचाए और जो भी यहाँ से जो प्रेस नोट बनाई गई है वो आपको दी जाएगी, वो आप लोगों तक पहुंचाइए. हमारी ये सबको अपील रहेगी जो विजिटर्स आने वाले हैं उनको कि यहाँ पे ये वन रूप में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो होने जा रहा है, उसमें आप आइए और आपकी पसंदीदा यहाँ पे आप वास्तु चुनिए. थैंक यू वेरी मच.
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने प्यारे वे में रसीक सर ने सबको बेस्ट विशेस दिए हैं, उतनी ही जोरदार तालियां उनके लिए एक बार बजनी चाहिए. कम ऑन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रसीक सर. नाउ टू कंटिन्यू विद द इवेंट, I would like to invite on stage a leader whose experience and guidance have been instrumental in shaping the values of our association, who is none other than the trustee of CREDAI B&M Raigad, Mr. Bhadresh Shah ji. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ let's welcome Mr. Bhadresh Shah ji on the podium. And sir जब तक आते नहीं तब तक तालियों की आवाज बजती रहनी चाहिए. Come on everybody. सबसे पहले तो सॉरी, एज यूजल हमेशा लेट हो गया आज मैं. हाँ जी, अपने नंबर पे तो आई है. B&M का ये 9th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होने जा रहा है और इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई मेरी यूथ और यंग टीम को. बहुत हार्ड वर्किंग किया और मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे सक्सेसफुल एग्जीबिशन करने जा रहे हैं. सबसे बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, काफ़ी स्टॉल बुक हुए हैं और बहुत जल्दी बुक हो गए. तो पूरी यंग टीम, यूथ टीम विथ हेल्प ऑफ हमारे प्रेसिडेंट और हमारी B&M रायगढ़ का सबसे बड़ी विशेषता है कि हमेशा सारा हम लोग हेल्प पीछे खड़े रहते, पूरा काम यूथ कर लेती है. तो बहुत बहुत बधाई यूथ को सबसे पहले. फिर अनिश ने सोचा कि यार भद्रेश भाई को कुछ तो बोलने के लिए बुलाना पड़ेगा. तो आज हमारी बात हुई है कुछ पॉइंट पे डिस्कशन के लिए कि नवी मुंबई, सबसे पहले थैंक्स टू मीडिया. आज B&M रायगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पे इतना बड़े रूप में मीडिया भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई है. तो थैंक्स टू यू, क्योंकि आपके बिना तो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है. फिर बात हुई थी हमारी कि हम कुछ बात करें नवी मुंबई के लिए. क्यों नवी मुंबई आज सबसे चहेता शहर बन चुका है हर चीज़ के लिए. रियल इस्टेट का मेरे ख्याल से आज सबकी नज़र में भारत में सबसे बेस्ट अगर कोई जगह है तो वो नवी मुंबई. क्यों? कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा. आज हम देख रहे हैं कि सबसे वेल ऑर्गेनाइज प्लान नवी मुंबई का है. सेक्टर वाइज प्लानिंग है. आपके रोड देख लो, वेल रोड, आपका ड्रेनेज सिस्टम. आज अपन देखते हैं बारिश में जब भी देखते हैं मुंबई में पानी भर जाता है दूसरे शहरों में. आज 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ नवी मुंबई में कभी ऐसा पानी भरा और ऐसा कभी नहीं होता है. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. पानी क्वालिटी अच्छी, कभी पानी कम नहीं होता है. तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रहने, और इसी वजह से आप देखोगे ना तो आज रियल बायर नवी मुंबई को सबसे ज़्यादा मिलते हैं. बिकॉज जो भी आउटसाइडर आता है नौकरी के लिए, चाहे वो BKC रह रहा है चाहे वर्ली रह रहा है, नौकरी करने जा रहा है, वो प्रीफर करता है नवी मुंबई को. वो सोचता है मैं भले 1 घंटा ड्राइव कर लूँगा लेकिन मेरी फैमिली एक बहुत अच्छी जगह रहे जहाँ पे उसको वेल इंफ्रा मिले और अच्छी सुविधा मिले. सेकंड, आज अगर अपन बात करें तो एयरपोर्ट आने से नवी मुंबई का एक प्रकार से ग्रोथ इंजन कह सकते हैं. क्योंकि आज हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, आज आपका कार्गो आएगा. आप कम से कम मेरे ख्याल से एयरपोर्ट आने के बाद 25+ होटल यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है. तो रियल इस्टेट के लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. अगर इतना सारा चीज़ें आ रही है तो ग्रोथ तो रियल इस्टेट का होगा ही होगा. बात करें कनेक्टिविटी की तो MTHL से आज अब साउथ मुंबई देखो लाख रुपये का भाव है, यहाँ पे अपन क्या भाव में माल मिल रहा है. तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, 30 मिनट 35 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे साउथ मुंबई. थाना कोस्टल रोड आ रहा है, अलीबाग विरार आ रहा है, थाना अपन 25-30 मिनट. तो कनेक्टिविटी जो नवी मुंबई को मिली है वो किसी भी नोड मेरे ख्याल से किसी भी जगह को नहीं है. वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नवी मुंबई के लिए अपन कह सकते हैं. इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देखोगे तो आप कहीं पे भी आप देखो, साउथ मुंबई देख लो या मुंबई देख लो, सब ठहर गया है. कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता. आज नवी मुंबई आप देखोगे तो आज नया एरिया MIDC डेवलप हो रहा है जहाँ आपको 6-7 हज़ार में ऑफिसेज मिल रहे हैं. आपको फ्लैट 12-13 हज़ार में मिल रहे हैं जो 100% 2-3 टाइम्स प्लस हो जाएंगे. खारघर के आसपास का एरिया 6-7 हज़ार में, पनवेल के आसपास आज आप कहीं भी दूसरी जगह देखो 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपये नॉर्मल रेट है, जहाँ न तो इतना अच्छा इंफ्रा है ना रेट बढ़ती है. लेकिन आज यहाँ पे जो भी आप 6-7 हज़ार 8 हज़ार में भी माल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 25-30 हज़ार में मिल रहा है. तो वो डबल होने के चांस बहुत ज़्यादा है. तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी नवी मुंबई बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है.
एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो आप SEZ आ रहा है, इतना पूरा एमआईडीसी में कॉमर्शियल आ रहा है, तो जगह जगह इतने ऑफिसेज आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो भी रियल एस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा, बिल्डर एसोसिएशन के बारे में भी बात करूंगा, तो हमेशा बिल्डर एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ लग के यही आशा करता है और यही कोशिश करता है कि बेस्ट से बेस्ट नवी मुंबई जिस तरह से क्लीन है, जो ग्रो कर रहा है वो करता रहे। तो हम सब मिलके आज इस एग्जीबिशन को सक्सेसफुल हो, उसके लिए जितनी मेहनत टीम ने की है, उतनी मैं मीडिया से भी आशा करूंगा कि जो ये सब पॉइंट है वो सब कवर करे और बताए लोगों को कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से नवी मुंबई बेस्ट है और एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। थैंक यू। Thank you so much, sir, for addressing the crowd. Now, ladies and gentlemen, we all know कि क्रिडाई B&M रायगढ़ का एग्जीबिशन एक ऐसा एग्जीबिशन है जिसके लिए नवी मुंबई में नॉट जस्ट द डेवलपर्स बट कस्टमर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि अंडर वन रूफ कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिलेंगे, कई सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। बट वी ऑल वुड लव टू सी कि इस रूम के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो सच में हमारे अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो आप सब शो करने वाले हो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां बजा के। कम ऑन, लेट एवरीबॉडी शो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। दोनों हाथ इन द एयर, जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर अपकमिंग एग्जीबिशन। एंड नाउ उसी एग्जीबिशन की एक छोटी सी झलक हमें आज देखने के लिए मिलेंगी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट to please play the teaser of the upcoming exhibition. Namaste, I'm Shilpa Sharikundra and I'm so excited to invite you to the 9th Property Expo 2026 by Credai B&M Raigad. 6 से 9 February opposite Khandeshwar Railway Station, रायगढ़ का बिगेस्ट एक्सपो जहां बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एक ही छत के नीचे। यहाँ इन्वेस्टमेंट है सुपर से बहुत बहुत ऊपर। और याद रखिए 6 फरवरी को ग्रैंड ओपनिंग पे मैं खुद आ रही हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सी यू ऑल देयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये टीजर पसंद आया हो दिल से तो दिल से जोरदार तालियां एक बार बजनी चाहिए फॉर आवर अपकमिंग एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग अहेड विद द प्रोग्राम, it is truly an honor to be supported by partners who truly believes in the vision of this event. I may invite on stage our sponsor Mr. Vicky Thomas ji from EV Homes, our main sponsor। एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Vicky Thomas ji। गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. नमस्कार आमचे प्रेस मित्रमंडळ आणि एस्पेशली वी थैंक B&M क्रेडाई रायगढ़, ये हमको इस एग्जीबिशन का एक मौका दिया। इनफैक्ट ये एग्जीबिशन
ऑलरेडी BNM ने एक एग्जीबिशन जस्ट रिसेंटली कंक्लूड किया था, जिसमें ऑलरेडी सब लोग ने पार्टिसिपेट किया था। उसका एक इतना अच्छा रिस्पांस दिखाई दिया कि इन्होंने सोचा कि एक और बार हम ट्राई करें कि रायगढ़ को ऐसा पोजीशन करें, क्योंकि एयरपोर्ट जस्ट स्टार्ट हुआ था, उस दिन प्लेन लैंड नहीं हुई थी, हमने ज़बरदस्ती लैंड करवाया था एक एग्जीबिशन में। अब इस बार प्लेन लैंड हो चुकी है, तो एक और बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इनवाइट करें और उसी टाइप का, उसी तरीके का एक उनको एक एक्सपीरियंस दिलाया जाए। So we thank BANM, the entire team, especially the young crowd, the youth, जिन्होंने इतना मेहनत किया है और हमको भी एक मौका दिया है इसमें पार्टिसिपेट करने का और अच्छे से इसको अंजाम तक लेके गए। सेकेंडली, मैं सारे मेरे प्रेस के दोस्तों को इनवाइट करूंगा और पूछूंगा कि आप लोग ने लास्ट टाइम जिस तरीके से सपोर्ट किया हमको फॉर दी BANM exhibition in Vashi, we are expecting the same support from you. You'll be there, right? For all the full support, yeah? Yes, बस एक ही साथ बोल रहे हैं। Yes, तो सब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि हमारी एक्सिबिशन हो रही है और बाकी एक्सिबिशन में भी जो एक्सपीरियंस आपको वाशी में मिला उसी तरीके का, उससे भी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको पनवेल में कांदा कॉलोनी में खांदेश्वर में देखने मिलेगा। प्लस दूसरी मैं एक बात बोलूँगा सिर्फ नवी मुंबई के बारे में कि लास्ट एक्सिबिशन और ये एक्सिबिशन के बीच में नवी मुंबई हैज़ बिकम पोजिशनड एज द इनफैक्ट पूरे इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टेबल एसेट एरिया। आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं पे और मत जाइएगा, ये एक्सिबिशन में आके कहीं पे भी आप लगाइएगा। ये वो रेस का घोड़ा है जो लास्ट तक आपको इसमें पैसे जिता के देगा, क्योंकि इस तरीके का एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी बन चुका है स्पेशली रायगढ़। अगर आप देखेंगे ऐरोली से लेके पनवेल तक बड़ा चंक है, बराबर। अब पनवेल में एयरपोर्ट है, ऐरोली से लेके पनवेल में है तो पनवेल में एयरपोर्ट है। अब जितना ऐरोली से लेके पनवेल तक ग्रो हुआ है उतना पनवेल से आगे ग्रो होने का बाकी है, क्योंकि एयरपोर्ट तो मिडिल में है और वहीं पे आके अटल सेतु आके उतर रहे हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसकी कितनी पोटेंशियल अभी तक बैलेंस है, क्योंकि एक रिंग रोड के जैसा सैटेलाइट अगर आप देखेंगे तो ऐरोली से जो अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो सैटेलाइट है उसको सर्विस करने के लिए एयरपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट सब आ चुके हैं यहाँ पे। अभी तक वो पार्ट पूरा पेंडिंग है। तो ये जो आज 11-12 लाख में जो हमको एसेट्स मिल रहे हैं, बहुत ही जल्द ये 30-40 लाख के हो जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ आप सब तक पहुँचाइए और सबको दिल से मैं सबको थैंक्स बोलूँगा एंड टू BANM टू गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, Vicky sir. Now it's time to hear from our another key partner who has been instrumental in supporting us. Another main sponsor, Mr. Bhuvanesh ji from J Prime. जोरदार तालियों के साथ let's welcome Mr. Bhuvanesh ji. गुड इवनिंग गाइस, स्पेशल थैंक्स क्रेडाई BANM रायगढ़, इन्होंने मौका दिया और हमने छोड़ा भी नहीं और स्पेशल थैंक्स मीडिया पार्टनर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करना हो तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेस करना है तो अपने हमें यहाँ पे सबको मीडिया की ज़रूरत लगती है। तो सबसे पहले आपकी सबकी धन्यवाद चाहूँगा, आप यहाँ पे सब आ गए। मैं क्रेडाई के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। गेले 23 मराठी हिंदी कम्फर्टेबल मराठी थँक्स। गेले 23 वर्षापासून मी क्रेडाई BANM बरोबर वर्क करत आहे, म्हणजे J Prime ही क्रेडाई बरोबर वर्क करत आहे आणि 23 वर्षापासून त्यांना ओळखतो। लास्ट 9 ते 10 वर्ष झालं आम्ही त्यांना J Prime त्यांच्याबरोबर जोडलं आहे आणि आजपर्यंत आम्हाला खूप चांगला अनुभव आला या पूर्ण कमिटीसोबत आणि एवढी सपोर्टिव्ह कमिटी टीम मला आजपर्यंत कुठेच नाही भेटली। आणि जसं आत्ता त्यांनी आम्हाला एक संधी दिली की तुम्ही मेन स्पॉन्सर म्हणून या आणि आवर्जून आम्ही त्यांचा शब्द ठेवला आणि मेन स्पॉन्सरला होकार दिला आणि जसं मी स्टार्टिंगला बोललो की बरेच जणांनी बरेचसे पॉईंट कव्हर केले। जे 9 ते 10 आपले 8 आपले लास्ट एक्सपो झाले, मी पर्सनली त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं
ऑलमोस्ट 150 ते 200 बुकिंग ह्या प्रत्येक एक्सपोमध्ये होतात. पण बरेच वेळा काय होतं, प्रत्येक टायमाला ह्या स्पॉट बुकिंग होत नाही. बरेच वेळा कस्टमर येतात, व्हिजिट करतात स्टॉलला. 100मधून 10, 20, 30% लोक स्पॉट डिसिजन घेतात. 70% लोक असतात जे तुम्हाला पाईपलाईनमध्ये भेटतात. हे नंतर समजत नाही. जेव्हा आपण खेड्याचं लास्ट डे असतो, जेव्हा आपण सर्वजण गिफ्ट आणि जे अनाऊन्समेंट करतो त्यावेळेस सांगतो की 30 बुकिंग झाल्या, माझ्या 40 बुकिंग झाल्या. पण ॲक्च्युली बघायला गेलं तर प्रत्येकाला 150 ते 200 बुकिंग भेटतात. हे खूप मोठी गोष्ट आहे, पण ही सांगितली जात नाही. आणि ही मला आवर्जून आज सांगायची होती, कारण की स्पेशल थँक्स कोण करत नाही कमिटीचं. त्यासाठी हा एक विषय होता की 8 एक्सपोमध्ये मला चांगला रिस्पॉन्स भेटला आणि हा 9वा एक्सपो आहे आपला, जो की कामोठेमध्ये होणार आहे. आणि मला खूप गॅरंटी आहे, कारण की कमिटीने ज्या पद्धतीने तयारी केली आहे, ज्या पद्धतीने मार्केटिंग केली, ह्यावेळेस त्यांनी कुठलाही असा पॉईंट नाही ठेवला की तिथं मार्केटिंग नाही केली. काही आयडिया त्यांनी खूप चांगल्या लावल्यात. जेवढं आम्हाला काही आठवलं तर आम्ही त्यांना ऑलरेडी सजेस्ट केले की तुम्ही हे करा, आणि सजेस्ट केले. आणि सेकंड डे त्यांनी ऑलरेडी तिथे ॲक्शन घेतली. आणि मीडियाचे तर ऑलरेडी आहेच आहे, मीडियाने तर भरपूर सपोर्ट केला आहे, पुढे पण करत राहील. आज पण सपोर्ट करतात, इव्हेंटमध्ये पण येतात, सपोर्ट करतात. असाच सपोर्ट करत राहा, असेच केडीआयला सपोर्ट करत राहा. कारण की ही टीम जर राहिली तर मुंबईमध्ये ऑलरेडी बिल्डर असोसिएशनला एकदम मोठा स्टँड भेटेल, आणि तो भेटला पाहिजे ऑलरेडी. जसे 8 एक्सपो झाले, 8 एक्सपोमध्ये आपल्याकडं जसं नवी मुंबई डेव्हलप होत होती, पण एक एअरपोर्टची कमी होती, जी गेल्या 25-30 वर्षापासून ऐकत होतो की एअरपोर्ट येणार आहे नवी मुंबईसाठी. पण तो एअरपोर्ट येणार कधी, हे खूप लोकांचे क्वेश्चन्स होते की एअरपोर्ट येणार पण आलं नाही. जे ॲप्रिशिएशन भेटायला पाहिजे ते भेटलं नाही. मग ॲप्रिशिएशन कधी भेटणार, तर आता ॲप्रिशिएशन भेटायचा टाईम आहे. आणि हीच ती वेळ आहे, कारण की एअरपोर्ट जस्ट लॉन्च झालं आहे, जस्ट स्टार्ट झालं आहे. आत्ता 25 डिसेंबरला ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाईट टेकऑफ झाली आणि एअरपोर्ट स्टार्ट झालं आहे. हळूहळू रेट वाढत चाललेत. जसं बऱ्याच जणांनी सांगितलं की रेट वाढत चालले, ते मी तर सांगतो की रेट वाढले ऑलरेडी. आणि टॅगलाईन पण आहे आपला की अपना टाइम आएगा नहीं आ गया. तो सच में टाइम आ गया अपना. तो ये एक्सपो गलती से मैं मीडिया को बोलूँगा, ये टैगलाइन आप कवर कर लेना कि टाइम है अभी भी. जैसा उल्वे डेवलप हो गया, जैसा नवी मुंबई में बहुत सारे स्पॉट्स है जो सीधा डबल रेट हो गए. वो टाइम पे कस्टमर को टाइम नहीं मिला, या फिर वो टाइम पे कस्टमर ने इग्नोर किया. लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अभी अपना इन्वेस्टमेंट करो, और राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का. अगले 2 साल 3 साल में आपको आपका रेट डबल मिलेगा. तो ये एक्सपो आप गलती से छोड़ना मत. बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है, वो आप कवर कर लेना. थैंक्स टू मीडिया पार्टनर, थैंक्स टू केडीआई टीम, थैंक्स टू केडीआई बीएनएम रायगढ़ कमिटी. थैंक यू सो मच. तर मग सरांची वाणी ज्यांना मनापासून आवडली असेल त्यांनी जोरदार टाळ्यांसोबत त्यांचे इथे धन्यवाद करायचा आहे. थँक्यू सो मच सर फॉर एड्रेसिंग द क्राउड. नाउ प्रोसीडिंग अहेड विद द डे. आज की इस ग्रैंड प्रेस लॉन्च में हम सबके साथ मौजूद है द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ 9th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन. It gives me immense pleasure to call upon stage Mr. Amit Surveji from Shiji. So I request you kindly join me on stage for addressing the gathering. और हमारे टाइटल स्पॉन्सर का स्वागत किस तरह से होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you so much for this platform और opportunity के लिए कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इतना सम्मान दिया है. एंड अगेन थैंक्स बोलूँगा मैं क्रेडाई का पूरे टीम का, जो हमारे साथ लोग बैठे हैं. आज हमारा जो क्रेडाई का जर्नी स्टार्ट हुआ है, लास्ट काफ़ी सालों से है, हम जुड़े हैं. एक छोटे प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी, सोचा नहीं था कि आज टाइटल स्पॉन्सर में आ जाएंगे, बट ठीक है, छोटा छोटा काम करते करते स्वीट काम कर रहे हैं. आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, आगे बढ़ रहे हैं. एंड अगेन श्रीजी वेंचर्स बोलना चाहूँगा कि भाई मार्केट में जो काम करते हैं यूनिक है, स्पेशल है, एंड मेन यूएसपी साइज़ है. आओ हमारे प्रोडक्ट देखिए, आपको अच्छा लगेगा. एंड थैंक्स अगेन क्रेडाई, आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया है, खरे उतरेंगे. थैंक यू सो मच. तो सर ने कहा कि छोटे से शुरुआत किए थे, आज यहाँ तक पहुँचे. तो सर के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सर के लिए फिर एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. नाउ प्रोसीडिंग अहेड विद द डे.
Now we have come to the most awaited moment of the evening, the official press launch of 9th property exhibition of Kridai B&M Raigad. So now I would like to request all the members of the media fraternity, the floor is open for a brief question and answer session regarding the expo, and our dignitaries, our honorable dignitaries are on the dais to answer them. So we'll start this session here at this moment. सर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? मुझे लगा आप लोग आपस में मशगूल हो, आवाज नहीं पहुंच रही होगी। सर देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से पूना में प्रॉपर्टी के हालात बदहाल हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी में जो है वहां पे माल बिक नहीं रहा है लोगों का। उसके बाद आज शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो उसका भी हालत खराब है। इंडियन करेंसी आप देख रहे हैं कहाँ पहुंच रहा है, सोने का भाव क्या चल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि जो खरीदार है हालातों को देखकर नए घर खरीदने का ख्वाब सजाएंगे? क्योंकि बाजार काफी खराब होता जा रहा है, रुपयों की वैल्यू गिरती जा रही है और लोगों के दिलो दिमाग में एक डर सा समा गया है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर आपका जो एनालिसिस है, आई रिस्पेक्ट दैट। ये एनालिसिस के बाद जब डर आता है तो लोग क्या सोचते हैं कि जो मेरे पास है, मेरे हाथ में है, वो मेरा है। सो दैट इज वेयर द प्रॉपर्टी कम्स इनटू पिक्चर। टेंजिबल बोलते हैं उसे, टेंजिबल इन्वेस्टमेंट नंबर 1। नंबर 2, न्यू बॉम्बे के जो फंडामेंटल्स है, बाकी सब जगह स्पेक्यूलेशन चालू है। कमोडिटी, गोल्ड हो, सिल्वर हो, दिस आर ऑल स्पेक्यूलेटरी और इंटरनेशनल ट्रेंड से जुड़े हुए चीज़ें हैं। ये बहुत ही लोकल है, यहाँ के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, दे डोंट इवन रिक्वायर मार्केटिंग। द डे इट इज अनाउंस्ड और लॉन्च्ड देयर आर बायर्स, और वो बायर्स भी इन्वेस्टमेंट करके उसमें रिटर्न्स कमा रहे हैं। दे आर एग्जिटिंग बाय द टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्लैब होता है, दे आर एग्जिटिंग ऑल्सो मेकिंग मनी बिकॉज नथिंग, द क्रेडिट हियर डजंट गो टू द डेवलपर बट इट गोज टू द इकोसिस्टम। यहाँ का जो मार्केट है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आंकड़े सुनोगे, सो इट्स ऑलमोस्ट 30 crore square feet coming up in airport, in and around and MIDC area। आज से 5 साल या 4 साल के बाद जब ये MIDC एरिया आप देखेंगे तो इट विल बी फार बेटर देन पवई, फार बेटर देन BKC एंड फार बेटर देन कमला मिल एंड जो लोअर परेल वाला जो एरिया है। यू विल सी कि पूरा जो यहाँ का व्हाट वी से आउटलुक है, यहाँ का कैनवस है, वो चेंज हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑन पाम बीच रोड नेम रीजेंसी। 9 करोड़ में अपार्टमेंट लेने वाले नहीं थे, बिल्डर को पुश करना पड़ता था। आज 24 करोड़ में यही मार्केट में देयर इज अ वेटिंग, पीपल वांट टू बाय अ 4 बेडरूम हॉल किचन। और वही जगह से अगर मैं 1.5 से 2 किलोमीटर जाता हूँ, MIDC हो, वाशी हो या CBD बेलापुर हो, ये 3 में यू विल गेट इट एट ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40%। वही बजट में आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। आज आप साउथ बॉम्बे में कोई चीज़ लेते हो तो उसका 40% प्राइस आने के लिए आपको 40 किलोमीटर यानी मलाड, बोरीवली, कांदीवली तक जाना पड़ता है। यार विद इन 1.5 से 2 किलोमीटर में आपको वही इंफ्रा, वही फंडामेंटल्स मिलेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यू बॉम्बे। सो जहाँ पर भी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, इट मे रिमेन फ्लैट, इट मे ग्रो, दैट्स irrespective of anything, fundamentals यहाँ के strong है। So the only way to go here is up. It may go slowly, the curve may be this slope or this slope, that's different, but it will definitely do well. यस सर। एक अनाउंसमेंट किया आप लोगों ने कि 12 लाख से 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी, हरनिश भाई ने कहा।
पिछले एग्जीबिशन में देखा तो बीएनएम का जो एग्जीबिशन था, रसिक भाई बैठे हुए हैं, बसंत भाई बैठे हुए हैं, अनाउंस किया गया था कि 20 लाख में प्रॉपर्टी मिलेगी और 20 लाख में प्रॉपर्टी नहीं मिली। तो इस बार कम से कम खुलासा कर दीजिए कि पर 12 लाख की जो प्रॉपर्टी है या जो होम है वो कहां पर है, ताकि ये सवाल मीडिया से ना पूछा जाए। जब एग्जीबिशन हो तो लोग स्वयं देखें और वो कौन सा स्टॉल होगा जो आपको पहले से पता है कि इस स्टॉल पर 12 लाख में प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आप पनवेल से थोड़ा बाहर जाएंगे, रसायनी साइड, रायगढ़ में आपको 12-15 लाख, 12 इज अ बेसिक प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मिला के इसकी वैल्यू हो जाती है 15-16 लाख रुपया, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। और आप इस तरफ आते 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 न्यू बॉम्बे, पाम बीच तक पहुँचेंगे, जैसे देवांग ने बताया 24 करोड़, हम उस तरफ तो आ ही नहीं रहे। आज मैं खुद खामोटा में अपनी बिल्डिंग में 4 BHK 5-6 करोड़ का बेच रहा हूँ। तो हम वो उस हिसाब से रायगढ़ को डिवाइड करते हैं, लोएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है। मैंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग अब एक सपना हो गया है, यहाँ पर सपना हो गया है। इसलिए आपको डेफिनेटली बाहर ही जाना पड़ेगा, जहाँ आपको जितना दूर जाएंगे तो उतना सस्ता मिलेगा। जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बीच में आई थी, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में 15 लाख के आसपास उन्होंने ऑफर किया था। डेफिनेटली एरिया कम रहता है बट फिगर वो दिखती है। दावोस में जो बात हुई है, इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू FIIs। अभी आप देखेंगे सबसे पहला FII का जो आउटपुट है, एयरपोर्ट के बाजू में 250 एकर्स हैव बीन प्री लिस्ड, ऑलरेडी उसके कमिटमेंट आ चुके हैं। इट इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ एरो सिटी ली। सो दिस इज ऑल बिकॉज गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है और प्री लीज होने के उसकी वजह से दिस प्रोजेक्ट्स विल टेक ऑफ। एज मैंने बोला कि MIDC का एरिया है 20 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ IT, कमर्शियल, बैंकिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, ये सब यहाँ पर आने वाले हैं। 25 to 40 5-star होटल्स आने वाले हैं, थैंक्स टू द एयरपोर्ट, थैंक्स टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अभी ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसकी वजह से हाउसिंग की भी डिमांड बढ़ेगी। वॉक टू वर्क इज़ द न्यू कंसेप्ट। अभी तक न्यू बॉम्बे में वॉक टू वर्क वॉज नेवर एवर पॉसिबल, लेकिन अभी लग रहा है कि 6 एकड़, 7 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ के जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें काम भी करेंगे एंड दे विल वॉक टू देयर वर्क प्लेस। सेकेंडली, इवन इन कोर ऑफ वाशी, जैसे EV ग्रुप है, ऑल्सो मेकिंग कमर्शियल देयर। मिस्टर भद्रेश शाह, मिस्टर नितिन पटेल, आज आप एक समय था, मैं आपको नंबर्स के माध्यम से बताऊंगा कि पूरा एग्जीबिशन जो होता था उसकी सप्लाई 1 करोड़ स्क्वायर फीट होती थी। अभी जैसे EV होम्स, डेल्टा एंड टुडे ग्रुप, ये 3 कंपनीज की खाली आप देखोगे सप्लाई साइड विल बी ऑलमोस्ट 4 करोड़ स्क्वायर फीट एंड मोस्ट ऑफ इट इज सोल्ड आउट। बेस्ट पार्ट है, मोस्ट ऑफ इट इज सोल्ड आउट। So this kind of supply, this kind of employment, this kind of demand is there, robust demand है, strong demand है। और ये दावोस is a facilitator, एक catalyst बोलते हैं ना कि they take part in the chemical reaction just to expedite। ये जो process है वो expedite होता है। और दूसरा, जब हम वर्ल्ड फोरम पे, मैं तो एक ही चीज़ है, मैं लेमैन हूँ, मैं वर्ल्ड फोरम पे कोई भी चीज़ का कमिटमेंट देता हूँ तो मेरे को अगले साल वहाँ वर्ल्ड फोरम पे फेस करना है। अगर मैं ग्रास रूट पे whomsoever I am, अगर ग्रास रूट लेवल पे नेक्स्ट ईयर अगर मैं उस पे रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड। आज एड्यू सिटी है, हेल्थ सिटीज है, यूनिवर्सिटीज है, ऑल दिस इज गोइंग टू कम, मे बी अ लिटिल सूनर और लेटर, बट डेफिनेटली मुझे लगता है वर्ल्ड फोरम पे आप कमिटमेंट दे के पीछे नहीं हट सकते हो। स्लो हो सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकते हो। दैट इज व्हाट आई हैव टू आंसर एज फार एज दावोस इज कंसर्न। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि हाउस की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो इस पर एक आपके पास भी एक चैलेंज होगा इसको लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करना, तो इसे किस प्रकार से पूरा करेंगे? और लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, एजुसिटी भी यहाँ पे आ रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों का क्या कुछ फोकस है क्या? See, the standard of quality standards have improved, it will improve further. IT और कमर्शियल स्पेस में आज जो डिमांड है, अगर आप देखोगे तो लोग
एक प्रोफेशनल रिपोर्ट्स करते हैं. दे ट्राई टू मेक ग्रेड ए बिल्डिंग. वहाँ पर आपको रेंटल्स अच्छा मिलता है. और उसी तरीके से नाउ वी ऑल डेवलपर्स हैव अंडरस्टूड वन थिंग वेरी क्लियरली बिटवीन अस कि अगर क्वालिटी हम देंगे नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. पोटेंशियल जो भी कस्टमर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे लुक एट रिलायबिलिटी. Project will be completed in time, in full, and second thing is they want quality. If we are not able to provide quality, we will not be able to survive. So by what we say default, हमको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है. And when we have this kind of supply side coming in, we have to be competitive. That is part of the game. That's it. Aryan is also silent. Aryan Group has signed 4,000 crores. So I think यहाँ के जो भी डेवलपर्स थे बहुत छोटे से, इनफैक्ट काफ़ी सारे डेवलपर जीरो से स्टार्ट हुए. द स्टार्टिंग 98, 99, 2000 and I think we as entrepreneurs, thanks to this city, thanks to the ecosystem, we all have grown. पहले मीडिया में मुझे याद है जब पहले मीडिया के साथ मीटिंग होती थी 5 या 6 मीडिया पीपल होते थे. सो नाउ दैट हैज आल्सो इंक्रीज. वी ऑल आर ग्रोइंग एंड दैट्स गुड पार्ट. वी नीड टू बी थैंकफुल टू द सिटी, नॉट टू एनीबडी एल्स. सर डिफिकल्ट होंगे, ऑनेस्ट. Because the moment we are differing, the cost prices of construction is going up. Land price, आपका input price है वो ऊपर जा रहा है. So जब आपका raw material है, that is land and construction, if it is going up, and then to top it all, supply और demand का जो difference है, demand is huge. So from that perspective, मुझे लगता है जितना आप differ करोगे उतना महंगा होते जाएगा. That's it. सर, नवी मुंबई, पनवेल, उल्वे, इन आसपास के इलाकों में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की जिस तरह से रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, ऐसे में AQI लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है. तो इन चीज़ों पर आप किस तरह से ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में स्थिति और भी भयानक ना हो? अभी हमने लास्ट वीक वी हैड अ मीटिंग विद NMMC. उन्होंने SOPs निकाले हैं. तो एवरी साइट हैज़ टू हैव AQI मॉनिटर. कार वॉशिंग यानी जो RMC का जो ट्रक आता है, जो भी होते हैं टेम्पो आता है, उसको क्लीनिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए. दैट इज़ नंबर 2. एवरीथिंग हैज़ टू बी फेंस्ड. यानी आप जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो, इट हैज़ टू बी फेंस्ड विद अ क्लॉथ. दैट हैज़ टू बी वेट. उसको वेटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए. आपकी जो भी साइट के बाहर की जगह है उसको क्लीन रखना है. आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है कि यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स और डस्ट, ये दोनों चीज़ों को लेके हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट. और ऐसे बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट्स है. एंड जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उनको दंड यानी पेनल्टी दिया जाता है. बट ऑल सेड एंड डन, आई थिंक दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ. और ये अच्छा है. कभी कभी क्या होता है, हमारे ऊपर रेगुलेशन होता है तो और ईजी हो जाता है हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन. 30 फीट ऑफ व्हाट वी से द स्पेस कॉरिडोर जो है साइट को, उसको कवर करना है. सो आई थिंक ऑल दिस इज वेरी गुड फॉर अस. हमारे ऊपर क्या बोलता है, रेगुलेशन होना ज़रूरी है. एंड वी आर व्हाट वी से वी वांट टू डू कंप्लाई बाय दिस इन 100%. 99 नहीं, 100% इसको कंप्लाई करना ही है. ये हमारी मन से तीव्र इच्छा है. हमारे जब डेवलपर्स भी हम मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ गुड दैट दे हैव मेड दिस थिंग कंपलसरी एंड वी वांट टू फॉलो इट इन टोटल. हाँ, उनको बोला गया है कि अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो इट इज रोकेंगे. बट ऑल सेड एंड डन, इतने साइट्स है तो आप काफी सारी जगह पे देखोगे इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्टेड. सर आपका जो सुनिए, मैं बताता हूँ. कल हमको कमिश्नर साहब ने बुलाया था, जब उनको इनविटेशन देने गए थे तो इसी टॉपिक पे हमारी आधा घंटा उनसे डिस्कस हुई. उनके यहाँ ऑनलाइन चालू है, एक एक प्रोजेक्ट को वो मॉनिटर कर रहे हैं. किसका IQ अगर 300 के ऊपर जा रहा है तो उसको नोटिस जा रहा है. उन्होंने हमको दिखाया कि रेड, ग्रीन, येलो 3 लाइट्स वहाँ उनको शो हो रही हैं.
बाकायदा उन्होंने उनको डेमो दिखाया कि मुझे मालूम है कि कौन सा प्रोजेक्ट अगर मुझे देखना है कौन से एरिया में आई कैन सी इमीडिएटली, और उसको फिर वहाँ से नोटिस जाता है। आज भी कई बिल्डर्स को शोकॉज नोटिस इशू हुआ है कि आपका करो, उसमें एसओपी जो नॉर्म्स है मेन 18 फुट के ऊपर जाली लगाना है, वो सब कर रहे हैं। फॉग मशीन कंपलसरी है, वो भी सब अभी ले रहे हैं, सब मॉनिटर करना ज़रूरी है, वो भी सब हो रहा है। ये चीज़ अच्छी है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी सामान लेके आती है उसको हमको वॉश करके वापस भेजना है, ये हमें सब सिखाया गया, तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट दिल्ली न बने न्यू बॉम्बे, हम उसके लिए साथ में हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं, सिर्फ 9% कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है बिल्डर्स का, 91% गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योरी और आपका रोड का काम, एयरपोर्ट का काम वो चल रहा है। अभी 9% में हम लोग टारगेट है, बाकी कहाँ है? सर मैं आपको समझाऊं, नहीं मैं आपको समझाऊं, अफोर्डेबल हाउसिंग आज से 10 साल पहले उसकी डेफिनेशन अलग थी। देवांग ने जैसे बताया कि डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी अफोर्डेबल हाउसिंग हमारा हो जाएगा 50 लाख का, क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है। आज जितना पैसा 91 पे था, जब डॉलर 50 रुपया था तब आप अफोर्डेबल हाउसिंग क्या पकड़ते थे? 15-20 लाख। आज सोना कहाँ पहुँचा है, चांदी कहाँ पहुँची है, हर चीज़ अगर बढ़ रही है तो आपको भी अफोर्डेबल, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, तो वर्ड अफोर्डेबल का ही मीनिंग ऊपर आ जाएगा। स्टार्ट ही 50 लाख से हो जाएगा तो मिलेगा डेफिनेटली, कैसे नहीं मिलेगा? हर चीज़। सबसे पहले लैंड जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 50 से ऊपर, 50 से ऊपर समझ लीजिए 50% तो आएगा, क्योंकि हम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो सब आगे का, पनवेल का आगे का एरिया कवर कर रहे हैं ना। रसैनी भी है, खपोली भी है, अपर खारगर है, अब जिसको अपर खारगर कलोजा है, वहाँ के सब द्रोणागिरी है, वो तो सब 50 के अंदर ही है ना। आज भी 1% जीएसटी पे बिक रहे ना माल, 45 के अंदर ही हुआ, वैसा हो गया है। सर ये आपके एग्जीबिशन में 300 से शर्मा शाह जी सर 25 लाख पे द्रोणागिरी में 1 BHK का फ्लैट बेच रहे हैं। द्रोणागिरी में तो आपको 30 लाख में हम भी दे देंगे, कहाँ मना है? हाँ आज भी मिलेगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अफोर्डेबल का वर्ड ही चेंज हो रहा है, डेफिनेशन ही उसकी चेंज हो रही है। अगर सिडको दे रही है तो सिडको के सिस्टम्स अलग है। मैं बोला ना, मैं 25 लाख में हम भी दे देंगे, कहाँ मना है? सर आपल्या या एक्झिबिशनमध्ये 300हून अधिक प्रकल्प आहेत, याच्यामध्ये रेराचं परमिशन आहे का यांना, म्हणजे नोंदणीकृत आहेत? आणि दुसरी गोष्ट की यामध्ये जे ग्राहक येतात त्यांची फसवणूक न हो म्हणून याच्यासाठी आपल्या काही असोसिएशनने काही काळजी घेतलेली आहे? तसंच यामध्ये काही लोक बुकिंग करतात आणि त्यांना ताबा म्हणजेच पोझिशन भेटत नाही लवकर, याच्यावरती पण काही आपल्याकडे काही सुविधा आहे? आम जनता की पूरी कमाई पे पूरा उड़ा लिया उनका और फ्रॉड कर दिए, तो वैसे लोगों को भी आप लोग परमिशन दे रहे हैं कैसे एक्सपो में? सर प्रश्न समजला आपल्याला? पुन्हा सांगू का? आपल्याकडे 300हून अधिक जे प्रकल्प या एक्झिबिशन मध्ये आलेले आहेत. सर मैं इसका आंसर दूंगा. ओके. देयर आर ब्लैक शिप इन एवरी मार्केट all over the world. 95% of the developers have performed and will perform. 5% अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनके कारणभूत या उनके कर्मों से ही वो नेक्स्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. सो आवर थिंग इज टू क्रिएट अ मॉरल गाइडलाइन कि भाई अगर इस तरीके का कोई डेवलपर है और इस तरीके का आउटपुट निकाल रहा है तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑफ देयर ओन ओनली दे डोंट पार्टिसिपेट. हमने इतने सालों से देखा है. बट वी नीड टू सी द पॉजिटिव कि 95% ऑफ द डेवलपर्स आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. नंबर 1, दे आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. और थर्ड थिंग है, बुकिंग करना इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल दिस थिंग.
हम सिटी प्रमोट कर रहे हैं, सिटी में क्या क्या ऑप्शंस है वो प्रमोट कर रहे हैं, बैंकिंग के माध्यम से आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्या है वो समझ में आ रही है, पीपल कैन कंपेयर रेट्स, पीपल कैन अंडरस्टैंड वेयर व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. सेल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल डायनेमिक. यहाँ पर आके एटलीस्ट पीपल कैन कंपेयर various developers, properties, options available in commercial, residential, shopping and other things. Rest of the things are a very very minuscule part. और people understand, अगर greed ज़्यादा रखेंगे, if they are not able to understand कि सही डेवलपर कौन है और सही डेवलपर कौन नहीं है, उतना कॉमन सेंस तो दिया है, फिर ग्रीड का तो कोई मापदंड नहीं है. बट मॉरली यस, डेफिनेटली मॉरली we always make a endeavor कि भाई जो इस तरीके के डेवलपर्स है ना पार्टिसिपेट करें. अनिल भाई, आपने कहा 50 वेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टॉल्स कितने लग रहे हैं और कितने फाइनेंस और बैंकिंग कंपनियां आ रही हैं? इस बार हमें फाइनेंस की कंपनियों तक जाने ही नहीं पड़ा. हमारा एग्जीबिशन का साइज डबल है, लेकिन बिल्डर्स ही इतने ज़्यादा थे कि हमें कुछ बिल्डरों को मना करना पड़ा. तो हमारे पास बैंकिंग 1 या 2 ही इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सब बिल्डर ही इतने एडवांस में आ गए थे कि हमें ये चाहिए. हमारे पास कुछ 45 प्लस स्टॉल्स रहेगी, जिसमें से करीबन 43-44 बिल्डर्स की है और करीबन 70 प्लस डेवलपर्स रहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें. हम आंकड़ा तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, बट पिछले एग्जीबिशन में हमारे 550 प्लस बुकिंग हुई है और इस बार हमें वो रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा है आप सबके सपोर्ट से. और हमें लगता है कि जितना नवी मुंबई और रायगढ़ को हाईलाइट किया गया, आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रॉस द प्लस का स्कोर. अभी उसका जवाब मैं आपको 9 तारीख शाम को दे पाऊंगा. सर हियर पिछले एग्जीबिशन में जब नवीन भाई एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था, उस वक्त आपने एग्जीबिशन में ही पूरा का पूरा एयरपोर्ट आपने लॉन्च कर दिया. इस एग्जीबिशन में क्या करने वाले हैं? देखो, फ्लाइट अभी भी पड़ा है ना हमारे पास. नहीं, एक ये एक्सपो में से सेल्स, जैसे सर ने बोला कि एक पार्ट है, लेकिन सबसे मेन पार्ट ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना, जो प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में लोगों को कंपैरिजन करने का एक मौका देना, एंड उसी के साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना. मैं आप लोग की जो पहले वाली जो बात थी, आपने जो बोला, उसके लिए मैं बोलता हूँ आप लोग सब लोग मेरे स्टॉल पे आ जाइए, मैं VIP से अच्छे से आपको ट्रीट करूँगा, टेंशन मत लो. और ये लास्ट टाइम भी मैंने किया था, ये मैं हर साल करूँगा. और ऐसी कोई छोटी मोटी भूल चूक रहेगी तो उसे माफ़. एंड लेट्स ऑल पॉजिटिवली गो टुवर्ड्स सक्सेस. ऑल द बेस्ट. सर एक मिनट. सर एक प्रश्न है, मुझे हर आदमी पहचानता है. से जैसे प्राइसिंग बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा, द अपार्टमेंट साइज विल गो चाइना वे, हांगकांग वे, जापान वे. डायमेंशंस कम होंगे तो एक टाइम आएगा कि 600 स्क्वायर फीट कारपेट में 550 में 2 बेडरूम भी हो सकते हैं. सो दैट इज हाउ द मार्केट ग्लोबली चलता है, बिकॉज बजट की एक टॉप लिमिट है. So we have to work backwards and finally that is the way to go. देवांग सर, एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सपोज प्रॉपर्टी इच्छुक असेल खरेदी करणार, लास्ट 1 or 2 questions please. Yes. प्रॉपर्टी घेऊ इच्छुक असेल तो सपोज प्रॉपर्टी एक्झिबिशनमध्ये जो स्टॉलवर प्राइस आहे आणि सपोज एक्झिबिशन संपल्यावर तो इंटरेस्टेड आहे तेव्हा त्यांनी बुकिंग नाही केली आणि ऑनसाइट जी कॉस्ट आहे बिल्डरच्या ऑफिसमधली, त्याच्यामध्ये किती फरक आहे? अगर आप भी इस तरीके का माहौल देखोगे एग्जीबिशन का, तो डेवलपर इज वांटिंग टू क्लोज डील ड्यूरिंग द एग्जीबिशन एंड ही इज रेडी टू नेगोशिएट. It can be 1%, 0.5%, 2%, 5%, 10%. That depends from developer to developer. But मुझे लगता है कि एक एग्जीबिशन में अगर आप क्लोज करते हो या 15 days और a month from the exhibition date आप क्लोज करते हो आफ्टर सीइंग द साइट, कंपेयरिंग एंड ऑल, आपको बहुत अच्छा डील मिलता है एंड यू विल गेट अ वेरी गुड वैल्यू डील. म्हणजे सर नागरिकांना याचा फायदा 100% होणार आहे. 100%. आपकी आवाज आपकी खबर. जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें.